Business law. Next chapter, offer and acceptance. Today I am discussing essentials of a valid offer. In the first class, in the previous class, already I have discussed regarding the valid essentials of a valid contract. So you know, no offer must be there for a valid contract. So now essentials of a valid offer. Offer के भी कुछ essentials रहते. The person who want to sell his product, he is making the offer, he has to follow certain rules. So the following are the legal rules for a valid offer. वो offer को valid offer बोलने के लिए कुछ essentials है, कुछ rules है, ठीक है. So it must be capable of creating legal relationship. Offer जब अपन कर रहे हैं तो कुछ legal relationship रहना उसके लिए. Offer must be certain, definite and not vague. It must be communicated to the offer. Offer must be made with a view to obtain the assent of the other party. Offer may be conditional. Offer should not contain a term non-compliance of which would amount to acceptance. An invitation to offer is not an offer. So these are the 7 points you have to write for the essentials of a valid offer. Now we'll discuss. It must be capable of creating legal relationship. The first point of a valid offer is it must be capable of creating legal relationship. Now I am entering into an agreement. I am making an offer. So my intention should be what? It should be to create a legal relationship with the offeree. The intention of the person making the offer must be create legal relationship, otherwise it will not result in a valid contract even it is accepted. Now I am making an offer to my friend that I am inviting her to on my birthday party. ठीक है, वो लोग एक्सेप्ट, मैं ऑफर करी, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिए मेरे इन्विटेशन को, लेकिन ये ऑफर एक वैलिड ऑफर नहीं होता. अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट सोशल इन्विटेशन, क्योंकि यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट हो रही. इट्स क्लियर, इट डज नॉट क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप. तो ऑफर बोले तो क्या रहना है अपने को, लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना है. इवन दो एक्सेप्टेड हो गया अभी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. An offer must impose some legal duty रहना on the party making it. If such offer is accepted by the other party, that is an offer must be such that when accepted it must create a valid contract. Offer ऐसा रहना जब वो accept हुआ तो एक valid contract बनना वो. An offer for social और moral act के लिए जो रहता वो offer नहीं होता. Just now I have given one example of invitation to my friend on a birthday party. You know, that is a social or moral offer. A social invitation even accepted does not create a legal relationship. The absence of intention to create legal relationship is not a valid offer. Now example, one case is there, Kalai Haldar versus Sheikh. In this case Kalai Haldar invited Sheikh for dinner के लिए बुलाया उन्होंने. On Sheikh's failure, Sheikh's वहाँ पर वो नहीं आए. Mr. Kalai filed a suit against Sheikh. उनके लिए उन्होंने केस करे करते कि उन्होंने न्याय बोल के दावत में फॉर द प्राइस ऑफ द नॉन कंज्यूम फूड. जो भी फूड उन्होंने आने के लिए जो फूड ऑर्डर करे थे, जो फूड था उनके लिए नॉन कंज्यूम नहीं करे उन्होंने, तो वो फूड के लिए उन्होंने जो है केस करे. कलाई सूट वॉज डिसमिस, उनका केस जो था वो डिसमिस हो गया ऑन द ग्राउंड दैट हीज इन्विटेशन फॉर डिनर डिड नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप नहीं थी दोनों के बीच में बिटवीन हिमसेल्फ एंड शेख. इट्स क्लियर नो. नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी सर्टेन रहना, डेफिनेट रहना, नॉट वेट. सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, capable of being made certain or void. So terms offer must be properly worded रहना, जो भी आप ऑफर कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्डेड रहना. द टर्म्स एंड कंडीशन शुड स्पेल विथ सर्टेनिटी. द टर्म्स ऑफ द ऑफर शुड बी डेफिनेट रहना, सर्टेन रहना एंड क्लियर रहना, बट नॉट इनडिफिनाइट, अनसर्टेन. अगर वेज है, एम्बिजियस है, तो जैसा कि अगर मैं ऑफर कर रही हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू, सो आई हैव 3 कार्स, तो मैं 3 कार में डेफिनेटली नहीं सर्टेन नहीं हूँ मैं कि आपको रेड कार ही बेच रही हूँ बोल के, आप समझ रहे कि मैं ब्लैक कार बेच रही हूँ आपको, ठीक है, तो वो आप अलग समझ रहे, मैं अलग बेचना चाह रही हूँ, तो उसमें क्या रहता है वहाँ पर अपने को कंडीशन, ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं होता मेरी तरफ से. वो ऑफर मस्ट बी सर्टेन रहना, स्पेसिफिक रहना, डेफिनाइट रहना, देन ओनली इट इज़ ए वैलिड ऑफर होता वो.
एन ऑफरर कैन पुट एनी कंडीशन हाउ हार्ड और रिडिक्यूल बट इट शुड बी सर्टेन एंड लीगल. कंडीशंस कुछ भी रह सकते हैं लेकिन लीगल रहना है. अदरवाइज इट्स एक्सेप्टेंस विल रिजल्ट इनटू ए वेज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है विच इज अनएनफोर्सेबल इन द वेज कॉन्ट्रैक्ट. बोले तो सेम लाइक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल लॉ नहीं होता. यहाँ पर एक केस है इसके लिए, टेलर वर्सेस पोर्टिंगटन. इन दिस केस टेलर इज द प्लेंटिफ एंड पोर्टिंगटन इज द डिफेंडेंट. टेलर प्रॉमिस टू टेक मिस्टर पोर्टिंगटन हाउस ऑन लीज. लीज पे उनका घर लेते बोले थे उन्होंने. टेलर प्रॉमिस टू टेक लेते बोले उन्होंने मिस्टर पोर्टिंगटन हाउस ऑन लीज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years. इफ इट इज थरोली रिपेयर्ड करे एंड ड्राइंग रूम्स एंड डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्टाइल, it was held that the agreement is not enforceable as the terms of the offer are too vague, unclear and uncertain. तो ये केस में जो घर लेते बोले वो केस जो है सो डिसमिस हो गया क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशंस है वो कंडीशंस क्या है, बहुत अनसर्टेन है, क्लियर नहीं है. आजकल जो मॉडर्न चल रहा है उसके हिसाब से उन्होंने डेकोरेशन ड्राइंग रूम डेकोरेट करो बोल रहे उन्होंने, रिपेयर करो बोल रहे थरोरी, इतने कंडीशंस रख रहे उन्होंने सारे, वो जो सूट नहीं होते. सो टेलर का जो भी केस था ये डिसमिस हो गया. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. आप जिसको ऑफर कर रहे वो ऑफरी से कम्युनिकेट करना, देन ओनली इट बिकम ए वैलिड ऑफर. नाउ आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू but I am not communicating to you. I am communicating with your brother. So it is not a valid offer. It must be communicated to the offeree. If you want to purchase the car, then I should communicate to you only. That is the point. It must be communicated to the offeree. According to section 4 of the Indian Contract Act, an offer is communicated to the person to whom it made. टू होम, आप जिसके साथ ये कॉन्टैक्ट करना चाह रहे आप उनसे कम्युनिकेट करना है. वो पर्सन को क्या बोलते हैं, ऑफरी बोलते हैं. ठीक है, 2 पर्सन्स जो रहते हैं, एक जने ऑफर करते और जो एक्सेप्ट करने वाले रहते हैं उनको ऑफरी बोलते हैं. तो ऑफरी से कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, देन ओनली द ऑफर विल बिकम ए वैलिड ऑफर. The communication may be expressed or implied. It may be communication. So an acceptance cannot be given without having the knowledge of the offer. ऑफर की नॉलेज रहे तक एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता. एंड इट डज नॉट कन्फर एनी राइट्स ऑन द एक्सेप्टर. हियर वन केस वी हैव ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. गौरी दत्त's nephew absconded from home, so Gauri Dutt sent his servant Mr. Lalman Shukla in search of his missing nephew. After Lalman Shukla went to for searching the boy, Mr. Gauri Dutt by pamphlets offered to pay ₹501 to anybody who finds the boy. तो यहाँ पर क्या हो रहा, ये ललमन शुक्ला गौरी दत्त एक जो है सो एम्प्लॉयर है नो, सर्वेंट है उनके. तो यहाँ पर गौरी दत्त नेफ्यू जो है सो गुम गए. तो उन्होंने बोल रहे कि जो भी लाए उनके लिए ₹501 देते. ये पैम्फलेट्स के थ्रू हुआ. लेकिन शुक्ला वेंट फॉर सर्चिंग द बॉय. जो लालमन शुक्ला है जो सर्वेंट है उन्होंने ऑलरेडी चले गए, उनसे कम्युनिकेट नहीं हुई वो बात. बट ललमन शुक्ला हु इज अनअवेयर ऑफ द ऑफर, वो ऑफर के बारे में मालूम नहीं है उनको, फाउंड द बॉय हैंडेड ओवर इट टू दिस मास्टर. लेटर कम टू नो अबाउट द रिवार्ड के बारे में जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने क्लेम करे फॉर रिवार्ड इन दिस केस अगेंस्ट गौरी दत्त, उनके जो है सो एम्प्लॉयर को. इट वॉज हेल्ड दैट द ललमन शुक्ला विल नॉट गेट एनी रिवार्ड ऑन द ग्राउंड दैट ऑफर रिवार्ड वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. इनको ऑफरी जो है जो ढूंढ के लाए इनको जो है सो कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं हुआ था कि अगर आप ढूंढ के लाए तो आपको ₹501 मिलते बोल के. उन्होंने ढूंढने जाने के बाद में ये जो है सो पैम्फलेट के थ्रू बोले ये. ठीक है, तो उन्होंने ये केस नहीं कर सकते उनके मास्टर के लिए. नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी मेड विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी. ऑफर मस्ट बी मेड विथ ए व्यू. आई वॉन्ट टू सेल माई पेंसिल, तो मैं यहाँ पर अपने को ये जो भी ऑफर कर रहे हैं उसमें एसेंट होना है अदर पार्टी का, वेदर दे आर रेडी टू परचेज और नॉट, वेदर यू वॉन्ट टू परचेज दिस पेंसिल फ्रॉम मी और नॉट. देन ओनली अगर एसेंट रहा तो ही वो ऑफर एक वैलिड ऑफर होता. ऑफरर शुड हैव एन इंटेंशन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी. कंसेंट होना जरूरी है ऑफरी का. ए मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन डज नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ बाइंडिंग प्रॉमिस नहीं होता, वो खाली जस्ट ऐसी स्टेटमेंट इवन दो ए पर्सन ऑन होम इट मेड एक्ट्स अपॉन इन. एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर एक्सप्रेशंस ऑफ द इंटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ
Reficus, a father who father wrote to his would-be son-in-law that his daughter would have a share of whatever he had left, held that it was merely a statement of intention and not a valid offer. तो यहाँ पर जस्ट टू नो बोल रहे अपने के सन इन लॉ होने वाले वुड बी को कि यहाँ मेरी जो भी प्रॉपर्टी रहती वो मेरे डॉटर की होती. सो इट इज़ नॉट ए वैलिड ऑफर, जस्ट एक स्टेटमेंट है ये. एन ऑफर मेड विदाउट हैविंग, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन नहीं पूछ रहे टू गेट एक्सेप्टेंस के लिए, इज नॉट एन ऑफर. ए कोटेशन ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू कस्टमर टू ऑफर टू बाई. कोटेशंस जो रहते हैं ना प्राइजेस के, वो भी जो है सो इज नॉट एन ऑफर नहीं रहता वो, बट इन्विटेशन टू ए कस्टमर रहता टू ऑफर टू बाई. नो ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल हो सकता एंड ऑफर में भी कंडीशनल और नॉन कंडीशनल. एग्जाम्पल, एक्स में पुट कंडीशन टू वाई दैट आई विल परचेज योर बाइक इफ यू गिव मी योर मोबाइल फॉर फ्री. सो लाइक दैट कंडीशंस विल बी देयर बिकॉज कंसिडरेशन इज देयर. नो ही इज वॉट एक्स में पुट कंडीशन रख रहे कि आई विल परचेज योर बाइक, मैं आपकी बाइक लेता हूँ अगर आप बाइक के साथ इफ़ यू गिव योर मोबाइल फॉर फ्री. सो बाइक का प्राइस जब फिक्स होता देन दे हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर that with the bike the seller is giving the mobile phone free or not. It is a condition. So if offer agrees to the conditions by the offerer then they should be conveyed to the acceptance. A conditional offer lapse when the condition is not accepted. Conditional offer जो भी रहते अगर condition accept नहीं भी तो वो lapse हो जाता. Then conditional offer are invalid भी होते conditional offer where the terms are unreasonable. अनरीजनेबल. अब यहाँ पर सपोज उनकी बाइक 20,000 की है, ठीक है. अब उन्होंने कंडीशन क्या रख रहे हैं यहाँ पर, अगर उनके पास सपोज एक एप्पल फ़ोन है 1 लाख का फ़ोन है, 20,000 की बाइक के साथ 1 लाख का फ़ोन फ्री पूछ रहे उन्होंने, दैट इज़ अनरीजनेबल कंडीशन है वो. सो इलीगल और द ऑफर इज अनअवेयर ऑफ द टर्म्स. नेक्स्ट, ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म नॉन कंप्लियंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. ऑफर ऐसा नहीं रहना कि वो ऐसा नहीं रहना कि उसके टर्म्स जो रहते हैं वो नॉन कंप्लियंस कंप्लीट करे जैसे नहीं है, वैसा ऑफर नहीं रहना. ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट नहीं कर सकते सामने वाला, वैसे कुछ ऑफर नहीं करना. एन ऑफरर कैन नॉट से while making the offer that if the offer is not accepted before a certain date it will be presumed to have been accepted. ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म ऑफ नॉट कंप्लेंस. दैट मीन्स यहाँ पर अपन ऑफर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप 5 डेज में इसको एक्सेप्ट नहीं करें तो हम समझते कि मतलब नहीं भी कम्युनिकेट करें तो हम समझते कि आप एक्सेप्ट कर लिए. सो द पार्टी टू हुम द ऑफर हैज़ बीन मेड इज नॉट बॉन्ड टू कम्युनिकेट if he is not willing to accept the offer. If the offeree does not communicate, the offer cannot be assumed to be accepted. जब तक ऑफरी कम्युनिकेट नहीं करते कि मैं एक्सेप्ट करा बोल के, जब तक वो ऑफर एक्सेप्टेड नहीं होता. Example, A writes to B, I offer to sell my house for ₹40,000. If I do not receive a reply by Monday, अगर मेरे को मंडे तक रिप्लाई नहीं आया, I shall assume that you have accepted the offer. तुम मतलब you are ready to purchase my house. There will be no contract. ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता बिकॉज इफ इट इज डज नॉट रिप्लाई, अगर रिप्लाई नहीं आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ऑफर ही कम्युनिकेट करना ज़रूरी है. नेक्स्ट, एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एंड नॉट एन ऑफर. जो भी अपने को प्राइजेस रहते हैं ना, कैटलॉग जो प्राइजेस जो रहते हैं वो इन्विटेशन टू ऑफर रहते हैं, ऑफर नहीं रहता वो, ठीक है. इन्विटेशन टू ऑफर, द इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर. डिस्प्ले ऑफ गुड्स का जो डिस्प्ले रहता बाय ए शॉपकीपर, टैगिंग द प्राइस के जो टैग्स रहते मेक्स नो ऑफर बट इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर. सिमिलरली कोटेशंस, कैटलॉग्स, एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर टू सेल सर्टेन गुड्स, सर्कुलर sent to potential customers, inviting applications for a job, prospectus of a company, ये पूरे mere invitation है to offer but not actual offer. So, here Harvey again wrote that we agreed to buy bumper hall pen for ₹900 asked by you. So Facey did not reply to it, but Harvey filed a case against Facey for specific performance. It has been held that Harvey in first letter asked 2 questions. Firstly, will you sell us bumper hall pen? And secondly, telegraph lower cash price. Where Facey replied to only second question, which is an invitation to the offer but not a valid offer. So this is a invalid contract, invalid offer it is. It's clear, no? Harvey versus Facey. This is the case where Mr. Harvey wanted to purchase bumper hall pen
from Facey and inquired through telegraph. 2 questions he asked, but he get a reply of 1 question only. So Facey did not reply to it, but Harvey filed a case against Facey. So it is not a specific performance.